Honorable esteemed guests of honor, distinguished principal sir, worthy faculty members, and our distinguished audience, I wish you all a very good morning. I am Pariha Zafar, and I'm thrilled to welcome you all to this insightful session on Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 being held at our college. Today we have gathered here under the banner of Internal Quality Assurance of. Now, with utmost honor and delight, I would welcome and introduce the next luminary of this event, Mr. Rahul Sambyal, Chairman, Youth for Society, who has served tremendously for the betterment of the society. I welcome you, sir. I would also like to welcome our dedicated faculty members and thank them as well as their continuous efforts in fostering a rich learning environment at our institution. I would like to request our Honorable Principal Sir, Dr. Avdesh Pratap, to honor Mr. Subhash Gupta, retired session judge, with a shawl. Ms. Suchi Sharma, Coordinator, 5-year, 3-year BLLB course, to Rahul Sambyal with a sapling. Now, I would like to call upon the stage student of BLLB 3rd year, 5th semester, Danish Tak, to present a welcome address to the forum. Moving forward, I would like to mention it is with great excitement we are gathered here to gain insights from a truly exceptional individual. Mr. Subhash Gupta, retired session judge, is a visionary power to inspire us all. Please give me a warm welcome in joining sir on the stage. Good morning to all. Good morning. Principal Dogra Law College. I have heard about him a lot, and today it is my privilege. I have met him, and now he is not only a jurist. He is involved as we met today and talked in other social activities which are required. In the present scenario, you can see this socio-economic and political. Because these three things the society needs, that our citizens should excel in all these. Like Avdesh, this Pratap Singh ji and other staff members, and Ms. Rahul Sambyal is president of a NGO, Jews for Society. He talked with me a few days back and said that this menace of narcotics and psychotropic substances. I have many lectures of mine and with the advocates on my own and with the other social workers on this. My channel is a Kanuni Charcha. You might, on this YouTube channel, you might have heard about it and seen. So there is a group of the Dogra Law College. I'm sharing this episodes with the law students who have made this YouTube group. I think this is a YouTube group. So now main question is today's topic, a very interesting topic. I today wants that we should talk in simply. I have gone in another institution earlier. So the principal of that this law school asked me that you are this legal
languages, interpretation and others are very complicated. Life in India is very complicated. Like the words, a single words, if you have to interpret and talk about, it takes, you might have noted now the online is with the proceedings of the Supreme Court of India. Then they question a small point, a small term of the legal term is interpreted, the question raised and interpreted. This is also beneficial for all the people. मैंने पीछे किया तो प्रिंसिपल साहब जहाँ पे हैं, लीगल न्यूमरियन जूरिस्ट हैं, तो ये मेरी बात समझेंगे, आप भी बच्चों समझ लोगे। मैंने इस पे क्या किया, एक है, आई एम नॉट गोइंग टू टच एनी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, कोई कुछ नहीं। जो हमारा समाज था, जो इंडियन सोसाइटी, जब कोई भी वर्ल्ड की सोसाइटी है, ये डेवलप हुई है आस्ता आस्ता। ग्रुप में थे, ट्राइब में आए, ट्राइब में किंगशिप आई, आगे आए। तो ट्राइबल प्रैक्टिस जो है, मैं ये बता दूं, वो सभी की एक जैसी, जो इंडिया की सोसाइटी हो, जो नियर बाय, वो एक जैसी है। वो इस एक्ट ने क्या किया, जो 1937 का अंग्रेजों के टाइम का है, जो शरिया एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ टू मतलब पर्सनल लॉ किया है, उसको पार्लियामेंटेरियन इफेक्ट 1937 का है। तो मैंने कहा, वो चर्चा में आया, उन्होंने क्वेश्चन किया है, मैंने कहा यार ये एक्ट क्या करता है, वो सुपरसीड करता है जो हमारे कस्टम्स है। हम शादी कैसे करेंगे, हम दूसरे काम, इसमें जो कंसर्न क्या है, 4-5 चीजें हैं जो पर्सनल लॉ में आती है, और हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। हमारा कोडिफाई हो चुका है हिंदुओं का, मुस्लिम्स का कोडिफाई नहीं है, और वो शरिया के मुताबिक चल रहे, और जो कस्टम थी वहां पे उसको सुपरसीड करता है ये 1937 में है। तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, सेक्शन 29 देखना, उसमें क्या करता है, वो क्या करती है, वो जो प्रैक्टिस हैं, जो यूसेज हैं, कस्टम है, वो प्रवेल करने की लॉ पे। तो आज मैं थोड़ा आज तो बात कर, थोड़ा ये टाइम लूंगा आपका, फिर दोबारा इस पे आ जाऊंगा ये, क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा है। कुछ नहीं है, अडॉप्शन जे एक्ट है हमारा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ो, उसमें अडॉप्शन होती है। पर्सनल लॉ में 4-5 बातें हैं जो प्रोहिबिट होती है मुस्लिम लॉ, वो है अडॉप्शन। हाँ, रात को एक कोई कर रहा था, एक जूरिस्ट था, एक चर्चा चल रही, तो मैंने उसको कहा भाई नहीं, जो 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड है, वो सिर्फ कन्फाइंड है जहां वाइड मैरिज है, तो मुस्लिम पॉलीगैमी अलाउड है पर्सनल। तो उसमें मुस्लिम पे 494 नहीं लगेगा, जो पर्सनल मैरिज वो सर्वाइव करेगा। ये आईपीसी, तो वो कह रहे थे, कोई वहां पे थे, तो मैंने उनको जहां से भेजा, मैं कहता हूँ यू रॉन्ग, वो अलाउ करता। ये बातें जो है, ये जो चर्चा है, तो कुछ चीजें जो है ये खाम खा बनाई हुई है, तो कुछ क्या है, ये पॉलिटिकल डिसेंशन है। एक पार्टी जब हुकूमत होती है वो अपनी बात करती है, दूसरी वो करती है। लेकिन हमें जो ये एनडीपीएस एक्ट है, इसकी क्या है, इस पे वापस आते हैं। ये मैं पहले एक बात बता दूं, जो अभी मैं इसके प्रोविजन पे आ जाऊंगा, सेक्शन जो डेफिनेशन है इसमें स्टार्ट में। तो जैसे इंडियन पीनल कोड की आप सेक्शन 1 to 5 पढ़ो, एक तो आगे की एक्सटेंड किया हमारा, पहले यहाँ पे जो रणवीर पैनल कोड होता था, वो उससे बन गया वो जो 5 अगस्त 2019 को जो पॉलिटिकल चेंजेस हुई। लोग कहते हैं ना आर्टिकल 370 चला गया, जब मैं कुछ बात नहीं करता, मैं पॉलिटिकल चेंजेस करूंगा। बाकी चर्चा है, आप लोग करो, जूरिस्ट लोग करो, ये बच्चे करेंगे हमारे, तो हम जितना ही कहेंगे, क्योंकि ये तो उसमें क्या हो गया, तो जो इंडियन पीनल कोड था हमें लग गया, तो वैसी ही सेक्शन इसमें है, इसमें जो एनडीपीएस एक्ट ये एप्लीकेबिलिटी करता है। जो आप सेक्शन 1 to 5 पढ़ेंगे ना, वैसे है। मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊं, जे एक तो इंडियन सिटीजन का होता है, अगर कोई क्राइम इंडिया में होता है, एनडीपीएस लेटर, और जो इंडियन सिटीजन है, अगर कोई बाहर क्राइम करता है रिलेटेड टू दैट, दिस एनडीपीएस है। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बाहर से आते हैं इंडियन सिटीजन, तो उसको भी लेते हैं।
एक और यू विल फाइंड इन डेफिनेशन, उसमें क्या है, जैसे आपका इंडियन पेनल कोड है, हमारा एयरक्राफ्ट है और जहां को शिप है, होता है ना एयर टेरिटरी, आपने पढ़ा होगा जो तो आप अकेडमिक लोग हो, तो एयर टेरिटरी और जो जारी होती है शिप में जो बनी सी टेरिटरी, मतलब दो उसने कन्फाइंड टू द एयरक्राफ्ट टू द शिप, जो उसमें वो कहीं भी होगा, हाँ इट शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। वहां कोई क्राइम होगा, चाहे वो कहीं किसी भी फ्लाई जोन में एयरक्राफ्ट होगा और किसी भी सुई में होगा, तो उस पर एनडीपीएस एक्ट, मतलब जो क्राइम वहां पे होगा वो भी इसमें कवर किया गया है, जो एनडीपीएस। तो ये थोड़ा सा ये इसका है। तो आगे हमारा है, तो एक और मैं बता दूं थोड़ा सा हिस्ट्री की, अगर आपने सुननी है मेरे से सुनो। क्या था हमारे यहां पे पहला जो ड्रग एक्ट आया, ये था अंग्रेजों के टाइम था, उन्होंने ड्रग एक्ट कोई नहीं था, ऑपियम एक्ट था। वो ऑपियम क्या था, कल्टीवेट करवाते थे। मजेदार बात है, आप बड़े इस तारीख का बच्चे आईएएस के भी जाते हैं हमारे, मैं वहां पे भी जाता हूँ चाणक्य, तो मैं पब्लिक सर्विस इंग्लिश में रहा, तो थोड़ी थोड़ी मैं दोनों एस्पायरेंट के लिए बात करता हूँ। तो ये उसको कोई फायदा होगा जो आईएएस केएस उसमें जो कॉम्पिटिटिव में जाएगा, जो मैं बात कर रहा हूँ। ऑपियम ट्रेड क्यों किया इन्होंने, कल्टीवेशन की इंडिया में करवाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ये एक तो किंग डायनेस्टी थी, कहां पे, चाइना में, क्यों आई एंड उस वक्त तो वहां 3 वार्स हुई, ऑपियम वार्स। उनको आप हिस्ट्री देखोगे, देयर वर 3 वार्स। वो क्या करते थे मुझे बताइए, मेरा इंटरेस्टिंग है। और ये अंग्रेज लोग ट्रेड करते थे, इनका ट्रेड भी अलग ही था। इन्होंने क्या किया कि इनको चाहिए था ऑपियम, कल्टीवेट करवाया इंडिया में, जहां जो हांगकांग जो दूसरी जो जिनकी जो उस वक्त तक कॉलोनी थी, वहां पे करवा के वहां से लेना, इनको पैसा देना पड़ता था वहां व्यापारियों को, किनको, ट्रेडर्स जो थे, वो सिल्क लेते थे, वहां से टी लेते थे, जहां अदर और बार्टर सिस्टम लगाओ, जो पैसा था कुछ भी था जो चाइना के व्यापारियों को देते। इन्होंने कहा यार बड़ा पैसा देना पड़ता है, तो इनको वहां पे लोग थोड़े से ड्रग एडिक्ट तैयार किया, तो वहां के राजा के साथ टकराव हुआ, पड़क हुई हिस्ट्री यूल फाइंड। तो 3 वार्स ऑपियम पर हुई। ये एक हमारा एक्ट है 1858 का, एक आ गया 1850, ये दोनों ऑपियम एक्ट है। एक डेंजरस ड्रग्स एक्ट है 1930। तो उसके बाद क्या हुआ कि जहां पे जो एक्ट हम आ रहे हैं, जैसे एक जहां पे बोल रहा कि कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, तो एक तो मैं कहूँ 1961 में यूएन में ये चर्चा हुई, ये ड्रग यूनोस बढ़ गया है, लेट अस देयर कि वो इस पे कोई लाभ बनाया जाए। तो हमारा भी वहां जाना था, और इसका क्या था कि हमारे पास कानून कोई नहीं था एंटीट्रस्ट का। हम कहाँ जाते थे, एक्साइज एक्ट जब छोटा मोटा और कर देते थे। तो फिर क्या हुआ, जो मेन है 1985 में ये एक्ट बन गया। तो एक बच्चों को समझाने के लिए जो आप सुनते हैं ना, कहते हैं कि ये कब हुआ, 14th ऑफ द चिल्ड्रन डे है, जो नेहरू जी का जन्म था, जवाहरलाल नेहरू का, तो उसके साथ 14 नवंबर 1984 इनफोर्स हो गया ये वाला जो एक्ट। तो ये इसमें अमेंडमेंट बहुत आई। अमेंडमेंट क्यों आई, एक क्या था जो एक्ट था 1985 वाला पीछे, उसमें क्या था कि जो जे इसमें क्या था कि जे एक ही क्वांटिटी थी, समझो एक के पास 10 kg चर्च आ गई, दूसरे के पास 10 ग्राम केजी है, तो वो सभी को एक ही उससे, तो उसमें फिर डिफरेंस लाया। यू विल फाइंड, आपने पढ़ा होगा ये एक्ट, जो भी इस एक्ट में 3 क्वांटिटी के मुताबिक पनिशमेंट है। आप प्रोविजन पढ़ लेना, जितनी क्वांटिटी किससे होगी रिकवर अकॉर्डिंगली पनिशमेंट है। तो इसको 3 डिग्री में, मैं अभी आ जाऊंगा प्रोसीजर पे भी आऊंगा, पहले मैं बताऊंगा जो शेड्यूल है ना, एक शेड्यूल है इसके साथ, 6 चैप्टर हैं इसके, और उसमें क्या है कि उसमें लिखा है कि चर्च अगर 1 kg होगा तो कमर्शियल क्वांटिटी, 1 kg से ज्यादा है, सेक्शन 3 भी पढ़ना, कहते हैं 1 kg से ज्यादा, तो वहां दी है 1 kg। 1 kg से भी जो मैं जब जहां सेशन गया था, जहां तो मेरे पास बेल एप्लीकेशन आई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कमर्शियल एक सेक्शन 3 है इसी के,
उन्होंने कहा यार ये 1 kg लिखा है शेड्यूल में जो कमर्शियल क्वांटिटी है, तो इसकी बेल आप दे दो। तो हमने कहा यार ये 1 किलो है, आपसे रिकवरी हुई है। मैंने 2 बार जमानत रिजेक्ट कर दी उसकी, 2 टाइम बेल एप्लीकेशन बी, ये कमर्शियल क्वांटिटी है। फिर एक वकील साहब आए, देखो क्या है ये, कैसे होता है ये रिसर्च वर्क, और जो उन्होंने एक हिमाचल हाई कोर्ट की बेंच की जजमेंट बताई। तो सेक्शन 3 कहता है कि मोर देन द कमर्शियल क्वांटिटी मेंशन्ड इन द शेड्यूल, तो अगर वहां 1 किलो से ज्यादा, 1 ग्राम, आधा ग्राम, तो अगर रिकवरी हुई होती फिर उसमें कमर्शियल क्वांटिटी आनी थी। अब इसको, ये प्रैक्टिकल बात है, जब बच्चे जाएंगे प्रैक्टिस में आएंगे, जज बनेंगे, तो ये बातें उस वक्त चर्चा में, ऐसे भी एकेडमिक पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर हमने बेल दी, वो जजमेंट दी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब अगर सेक्शन 3 पढ़ोगे तो वो लिखा है कि मोर देन, लफ्ज मोर देन, तो मोर देन whatever is mentioned as commercial quantity in the schedule appended to, तो वहां 1 kg था, तो 1 kg मिनिमम आ गया, तो वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आ गया। ये आ गया, एक आ गया कमर्शियल, इंटरमीडिएट मीन एक है स्मॉल क्वांटिटी, तो स्मॉल क्वांटिटी की पनिशमेंट भी 1 ईयर तक, तो उसका ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट करते हैं। तो दूसरा आ गया आपका जो स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई है इस एक्ट में ट्रायल के लिए, वो जो जनरली जो भी इस वक्त हो रहा है वो वही देख रहे हैं सेशन जज। आपको है ना क्रिमिनल, आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा होगा, AR की ऑन द क्रिमिनल कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेक्शन जज। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, एडिशनल मैजिस्ट्रेट भी, लेकिन पावर वही है जो सेशन जज है, वही बात। तो ये आ गया स्पेशल ट्रायल का। एक आपने जिस सेक्शन पढ़ी होगी, कमिटल कैसे होता है, हर जो भी सेशन जज फाइल करता है, सेशन जज लफ्ज सुनो, वो बाय वे ऑफ कमिटल करता है। मैजिस्ट्रेट कमिट करेगा केस, आइडिया है इसके बारे में आपको, वो आप सेक्शन पढ़ना, उसके बाद वो करता है। लेकिन इस जो स्पेशल ऑफेंसेस होते हैं इनमें वो डायरेक्ट उसके पास सीधा चार्जशीट जाएगी, इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक प्रोसीजर आ गया। एक और मजेदार बात है, इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस जो अरेस्ट, सीजर और जो इनके पावरफुल्स की, पहले पुलिस तो बेसिक है ही, ये आपके NCB है। और आप सेक्शन 41 पढ़ोगे, मैं अभी प्रोसीजर भी आ रहा हूं कि 41, 42, 43, 50, 55। तो उसमें क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तूफान सिंह की जजमेंट है, तूफान सिंह वर्सेस, उसमें जो कन्फेशन होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा एविडेंस एक्ट में कि पुलिस में क्या पास कन्फेशन हुआ, एक कन्फेशन मेड बिफोर ए सेक्शन 24.25, 26 ना आए। समझो एक बंदे से रिकवरी हो गई, एक बंदे से रिकवरी हो गई, तो उन्होंने ये इसमें करते हैं जो नेक्सिस है जिनका, बिग बॉस जो होता है या दूसरा तीसरा, उसने 3 बंदों को 5-5 ग्राम का ये दे दी है, बंदे वही हैं, एक ही सोर्स से आ रही है, सोर्स तो पकड़ा नहीं जाता, कैरियर पकड़ा जाता है। कैरियर को भी क्या इस्तेमाल किया, तो तुझे ड्रग देंगे। अभी जो बच्चे हमारे हो रहे हैं ना, ये तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जो अपने लॉ कॉलेज डोगरा वालों को, और फर्स्ट टाइम जो मैं देखिए ये NDPS ने ये बातें बहुत करते हैं, जो पुलिस को, सिविल और क्रिमिनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। मैंने कहा एक दिन, अहीं कैसे राहुल जी मुझे पूछते थे जब हमने एक इस पे वो एपिसोड रिकॉर्ड किया, तो मैंने कहा यार देखो ये 2 होते हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, SSP और DM, जब कोई भी IAS वाला जो बच्चा होगा एस्पिरेंट, उसको ये आइडिया होगा कि आगे क्या बन, तो ये लोग रोक सकते हैं एंट्री में, लेकिन ये इतना खतरनाक नेक्सस है, ये नहीं ब्रेक हो सकता। ये पता नहीं क्या इंटरनेशनल, नेशनल क्या है क्या ना है, हम इसमें लंबा नहीं जाएंगे। लेकिन हम देखिए होता क्या है, जब डिमांड है तो सप्लाई है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। हम डिमांड बंद कर देंगे, सप्लाई खत्म हो जाएगी, लेकिन डिमांड बंद करना बहुत मुश्किल। फिर कौन आएंगे, लास्ट स्कूल बच्चे आएंगे, आप लोग आएंगे। मैं बता दूं आपको, ये जो सिविल है ना, जो एक बार कोड लगा लेता है ना,
और जिस पे वो बन जाता है वो वहां पे कुर्सी पे बैठ जाता है, उस पे बहुत किस्म के बात होते हैं। तो आज हम चर्चा इन्होंने किया तो इस पे भी आएगा कि यार ये चर्चा क्यों बुला रहे हैं डोगरा लाका, ये क्यों बुलाया है, क्योंकि ये एक ल्यूक्रेटिव, इसमें बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और आज जो न्याय संहिता बन रही है, जो हमारा न्याय जो नया आ रहा है भारतीय न्याय संहिता जिसमें आईपीसी है, तो उसमें ये भी आ रहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक इंडिपेंडेंट डिफेंस बना दी। एक टेररिस्ट एक्ट भी है उसमें, आप पढ़ोगे जब इसका ड्राफ्ट को, तो अभी हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसकी जो है, मैं एक मेरे पास और भी स्टोरी है, वो लंबी हो जाएगी, मैं बात बताऊंगा। हमने वो ये इस किस्म के जो प्रैक्टिकल देखे चीजें थोड़ा सा बता दो। मैं कुलगाम में सेशन देता, कुलगाम इन कश्मीर, मजेदार बात है, 3 बंदे पकड़े गए। पकड़े किसने? आईबी वालों ने, आर्मी वालों जो आईबी होती है, पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा 15 दिन एफआईआर नहीं लगी। बंदे कहां से चले? ये मेरे साथ है, ये भी उधर ही था। अरे रियाज यू आर आल्सो हैं, इसको कहते हैं क्या करेगा जज हमें। मजेदार ये नेक्सिस की बात कर रहा हूं, नेशनल क्या करेगा जज इधर हमें। और हुआ वही, क्या हुआ कि वहां पे 3 बड़ी मुश्किल से फिर इंटरवीन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में टकराव होता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये बातें उन्होंने सस्पेंड कर दिया एसएचओ को, डीएसपी की एक्सप्लेनेशन जो एसटीओपी था वहां पे जिन्होंने पर्चा दिया। तो बात एक स्पेशल एसेट जो कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं दिखावे के लिए या जो भी है। तो मजेदार क्या हुआ कि फिर 15 दिन के बाद लगा और सिट आई, तो जो बाड़ी जब खेत को खाती है तो मसला खत्म। तो मेरे पास आई बेल, मैंने कहा ये कमर्शियल है, 1-1 किलो 3 बंदे थे, जिससे कमर्शियल क्वांटिटी में जो आप पढ़े वो सेक्शन 37 पढ़ोगे इसकी, उसमें स्पेसिफिक बात है। जज को लिखना पड़ेगा जो बेल लेगा कमर्शियल क्वांटिटी की कि इस प्राइमा फेसी इट्स नॉट मोट, और इन्वेस्टिगेशन स्टेज में लिखना बहुत मुश्किल है। तो मैं उन 3 बंदों की जिनकी जमानत रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट हो गई। तो नए साहब आगे जो एसआईटी के हेड थे, सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्या है। तो उन्होंने क्या कहा, भाई तो मेरे पास आए जनाब, ये है आपने जमानत रिजेक्ट किया, ये है ही कुछ नहीं। तो मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन भैया, बोला ये पूरा, मैंने कहा नहीं है तो बंद कर दो केस। उन्होंने एफएसएल में भेजा, सुनिए फोरेंसिक साइंस जो लॉटरी में भेजा, इसी चर्च जो पैक। पहले तो उन्होंने जब इन्होंने पूछा कि कैसे पता चलता है कि वो क्या लिखते हैं, चर्च नुमा चीज, मीन के जो वैसी है तो चर्च जैसी है, जहां हीरोइन जैसी है। जी जब पकड़ते हैं ना किसी से, तो एक्सपर्ट नहीं होते, अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव रखने के लिए ये लिखते हैं। तो वहां चले गए एफएसएल में। सर सुनिए बड़े मजेदार है, बड़े मजेदार है। तो वहां क्या निकला, जो बोरिक पाउडर होता है, यूरिया शूरिया कोई 1 किलो, ये है ये सामने मेरे पास, मेरा ये पूरा साल से। तो मैंने कहा कहता सर रिपोर्ट आ गई है, आप ऐसे ही जमानत रिजेक्ट करते रहते हैं। मैंने क्या आ गई है, ये तो आया देखो। तो ये हमने जो प्रैक्टिस करते थे एज एडवोकेट, ये सारे धंधे हमने देखे हुए। ये जो लोग जैसे ड्रामे है ना दुनिया के, जहाँ ये तो वो आ गई, ये सारा मसला बन गया। तो मुझे कहने लगे जमानत दो। मैंने कहा यार दोनों सुनो मजेदार, अभी जज समझदार हो। वो क्या करते हैं, जब भी पुलिस वाले जज पे डाल देंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कुछ है स्टेट गवर्नमेंट, उसको काम नहीं हो रहा है तो एक अच्छे से बंदे को ढूंढ के पीएल लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए। अगर नहीं करना है तो पीआईएल बुला देंगे, बुला देंगे वो। तो वो मैंने कहा यार इन्वेस्टिगेशन आपके पास है, यूरिया आया है, नहीं आपको नारिको हीरोइन है, तो क्लोज कर दो केस, नो केस इज मेड आउट। तो आपको पता होता है कि इसमें जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो 154 की एफआईआर लगती है और लास्ट में 173 तक जाता है, बीच में जो भी लग रहा है। तो 173 में क्या होता है, उसमें 2 रिपोर्टें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक प्रूव्ड एक नॉट। उसको एक्सतामी बोलते हैं हम इधर अपने
इधर आपने कश्मीर जम्मू कश्मीर में और उर्दू का एक्ट तो कभी नहीं है तो वो ले आए। मैंने कहा यार इतना मैं बना दूं। एक्चुअली केस क्लोज्ड, बंदे को 169 का फायदा होता है, 169 आप देखो कि करोड़ अगर उसने कहते हैं कि सफिशिएंट लो एविडेंस नहीं है, वो हमने इसको छोड़ रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग आफ्टर कंप्लीशन टू छोड़ सकता है। मतलब एक तो वही किया उन्होंने। मैंने कहा लेट द बॉल बी इन देयर कोर्ट। फिर मेरे पास जब उन्होंने लाई अफ्तामी, तो मैंने कहा यार कौन है कंप्लेनेंट? कंप्लेनेंट था आरआर का चीफ, जो हमारे वर्क करते हैं ना, ये जो आर्मी, वो था। मैंने कहा नोटिस, आपने ये भी सुना होगा, कोई भी अभी कल ही जजमेंट लाइव में निकालोगे, प्रोटेस्ट पिटीशन एक डाल सकता है जो विक्टिम है, जहां जिसने सेट द लॉ इनटू मोशन, जो इन्फॉर्मेंट हो सकता है कई केसेस में, कॉग्निजेबल केसेस में जरूरी नहीं है कि विक्टिम एग्रीव्ड हो, एनीबॉडी कैन लॉस सेट द लॉ इनटू मोशन। तो आपने पढ़ा होगा कॉग्निजेबल। तो मैंने कहा भाई इसको आप क्लोज कर दो। क्लोज किया, तामी मेरे पास आ गई, मैंने उसको नोटिस दिया। तो फिर इसके बाद मेरी ट्रांसफर हो गई। तो ये चर्चा लंबी है। बीच में पुलिस ऑफिसर थे वहां, एक डीआईजी साहब, वो मुझे पूछने लगे क्या हुआ इसका। मैंने कहा बाद में सुनाऊंगा। जो ये चीजें जो हैं, ये केस नहीं है, हजारों हैं। जाने कहा थे, फिर हमने अपनी तरफ से एक प्रिंसिपल साहब, हमने अपनी तरफ से थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की। यार ये किस तरह से लड़के चले, कुलगाम में आए, ये कहां कौन सा रूट अडॉप्ट किया? इस बार डोडा छोटा आते जम्मू वाले, तो उन्होंने आना था कुलगाम से कोसरनाग, कोसरनाग से रियासी से सीधी जानी थी, जहां जानी थी दिल्ली में चलता था, आपने कटरा आगे कटरा से। तो ये इनका नेक्स्ट, इनके पूरे अपने नेटवर्क होते, कहाँ इनके बंदे हैं, कहाँ साफ्ट हैं। तो ये एक, इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, मैं जो आप करवाए कि सबसे बच्चों ये बात है, और ये इतना गंदा नशा है, ये इतना गंदा नशा है, और बंदा मतलब उस पर दबाव इतना बढ़ जाता है, और एक बार जो होता है तो फिर उसमें उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कैरियर करेंगे, दूसरा करेंगे, और निकल ही नहीं सकता। हम एक बार गए इसी पे एनडीपीएस में, रोहिणी में जब गए थे हम, तो एक ट्रेनिंग थी, वहां एक सीबीआई डायरेक्टर आए, मजेदार सुनिए। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन कहता, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो एक बंदे को हमने पकड़ा। तो ये जो ऐसे होता है ना, बैठे यू विल फाइंड इन आइसोलेटेड प्लेसेस में जो ड्रग्स लेने वाले जो इंजेक्शन लेते हैं, दूसरा लेते हैं, और वहां पे ही तो स्कूल कॉलेजेस के इर्द गिर्द भी लोग यू विल फाइंड। तो वो क्या कर रहा था, उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कि हमने पूछा भाई क्या है, तो कहता है इस वक्त मेरे साथ मत बात करो, मैं इस वक्त स्विमिंग पूल में हूं, और पुराना एक्टर से मैं इस वक्त स्विम कर रहा हूं। तो मैं अभी अपने आंखों पे दूसरा तीसरा, तो एक आंख उसने बाहर निकाल ली थी। बस अग्रेसिव दोनों होते हैं, कभी ये पैसे हो जाते हैं, ये ड्रग एडिक्ट, कभी अग्रेसिव हो जाते हैं। उसने कहा तू एक तो निकालने दूसरे निकालने जा रहा है आपको। तो ये नशा ये है। और अगर आप इसको कैरियर को देखो कैसे लाता है वो, कस्टम वाले कैसे पकड़ते हैं, सर्जरी होती है, उसी ने बताया कि हमने कैसे कैसे डिटेक्ट किया था। कुछ डिटेक्शन आती नहीं है जो आपके एक्सीडेंट। ये जो बिग है ना, ये नेक्सिस वाले हैं, मैंने इनको कहा मैं क्या, ये अभी हमने एक बात की थी साइबर क्राइम पे राहुल जी से। साइबर में मैं क्या, आपको वो आईटी जिन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट की इंस्पेक्टर लगा दिया। इंस्पेक्टर करेगा तफ्तीश किसकी, जो साइट ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये मैं क्या, बड़ा कर लो, समझो एक आप काम है जहां पे एक प्रिंसिपल, जहां एक टीचर लगा दो, जो आपने लॉ पढ़ाना तो लगा दो इंजीनियर, जहां लगा दो वहां पे कोई हिस्ट्री वाला, चलो हिस्ट्री तो आपको 5 ईयर में, कोई और लगा दो, डॉक्टर लगा दो, क्या पढ़ाएगा? जो इंस्पेक्टर है, चाहे इंस्पेक्टर है, और जब तक आईटी एक्सपर्ट नहीं होगा, हाउ, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है एविडेंस बनाना उसको लॉ कोड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में रिट्राइव करना है एविडेंस, और वो उसको साबित करना एज ए इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ एविडेंस, और रिट्राइव करने में
मेरे साथ एक टेक्निकल बंदा है, राहुल जी को पता है, उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जो मेरा हमारा जो चलाता है मैनेजर टेक्निकल हेड है, उसने बताया जरा तो इनको भी काफी ना भाई कैसे ये करते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं। आपने भी दोनों OTP दे दो, दूसरा तीसरा दे दो, जो वहां बैठे हैं आपका कनेक्शन कट जाएगा, आपकी लॉटरी आई है, पैसा आया है, दूसरा तीसरा जी। तो ये जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो NDPS में, इनके पास क्या है, इनके पास में इसके बाद में इनके फिर केसेस होते हैं, जब पकड़ते हैं नहीं इसके NCB वालों को पास किट क्या है, उसमें जो हमें वो आपके पास होगा, आप उसी वक्त चेक करके देख सकते हो कि ये हीरोइन है, कैनवस है, क्या है वो। एक केमिकल टेस्ट जैसे हम लॉटरी में जब केमिस्ट्री के स्टूडेंट करते हैं उससे निकल जाता है, वो स्पॉट पे बंदा लिखा आपने चेस नुमा, जमान तो ही नहीं, तो 10 साल के बाद बंदे की हो गई तो जो 10 साल का पीरियड था और यही आ गया कि भाई जहां समझो FSL की आ गई, तो जब चार्ज कोड लगता है ना वो FSL के बेस पे, जब तक FSL रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि कौन दिखाएगा, वही एक्सपर्ट दिखाएगा, जैसे मैंने बात की। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो है इसकी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, तो ये नहीं है कि भाई आप हाँ एक जो, तो ऐसे ही मैंने कहा भाई IT एक्ट वाला या इसमें एक्सपर्ट होगा जो NDPS में, जिसमें प्रोविजन। और एक हमारे जहां चर्चा थी, जजमेंट भी आ गई अपने हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी ए लॉ ग्रेजुएट। लॉ ग्रेजुएट जो होगा इनोवेटिव होगा, उसका माइंड जो है ना क्रिटिक्स होगा, चाहे एक इंजीनियर जैसे होता है, मतलब इनोवेटिव होगा उसका आइडिया, वो थोड़ा सा काम। तो ऐसे सिंपल को आप लगा दोगे, तो हमने ये भी कहा पीछे, जैसे प्रोसिक्यूशन एजेंसी अभी सेपरेट होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो बन गए 3 बैच हमने ही दिए हैं पीछे, तो ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलग होना चाहिए। और पर्टिकुलर इसमें एंड जो क्राइम है, स्पेशल क्राइम है, स्पेशल एक्ट, और जो जहां पे टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, इसको लिफ्ट कैसे करना है, इसका सैंपल की वो कैसे निकालना है। देखो क्या होता है, वही निकालता है, वही इन्वेस्टिगेशन कर देता है, वही पकड़ता है। जब कोर्ट में केस जाता है, इसमें 41, 42, 43, 50, 55 जो प्रोसीजर का चैप्टर है, उसमें जो सेक्शन है वो क्या कहता है कि एक दो किस्म का, एक स्पॉन्टेनियस नाका लगा है, बंदा पकड़ा जाता है तो उससे रिकवरी हो जाती है, एक वो सिस्टम है। उसमें क्या है, उस बंदे का राइट है, सेक्शन 50 जो NDPS एक्ट, उसमें क्या करना, उस जो आपने जिसको डिटेन किया, मैं डिटेन बोलूंगा, अरेस्ट नहीं बोलूंगा, डिटेन का राइट है कि ही बी गेट सर्च्ड फ्रॉम ए बिफोर ए मैजिस्ट्रेट, इसमें जजमेंट भी आ चुकी है, उसका राइट। तो ये क्या करते हैं, एक DSP कहते हैं जनाब इसने कंजेंट दी है कि हमारे DSP से ही करवा लो बोगस सर्विस, तो उसमें एक बना लेते हैं, अंगूठा लगा लेते हैं, जब वो बनता है ना उसका डिटेंशन ऑर्डर, जब वो तो जनाब इसने कंजेंट दी, 2 अंगूठे लगाए, 2 उसमें साइड में विटनेस डाले, तो फिर क्या कहता है, कोर्ट कहता है आपने पढ़ी नहीं बनानी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, जो कहता है कि मैजिस्ट्रेट से ही के सामने इसकी सर्च होगी, सेक्शन 50, तो 50 की वायलेशन। और इसमें पनिशमेंट कितनी है, 20 साल, 10 साल, 2 लाख, 1 लाख, जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ये आप जो रेलवेट सेक्शन है पढ़ेंगे। और बेल है ही नहीं, क्योंकि उसने दोनों किया, तो उसको री एग्जामिनेशन का किसको राइट हुआ, प्रोसिक्यूटर। री एग्जामिनेशन में DGP ने कहा मूड कोर्ट हमने बनाया, जो ट्रेनिंग सेंटर है विजयपुर में, तो एक हमने केस रखा था, हमारे प्रिंसिपल सर सुनी वाले, जहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये विजयपुर वाला ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे एक मूड कोर्ट भी एक जैसे आपका हाल ऐसे ही बनाया, तो DGP ने किया, तो मैंने ही मुझे उन्होंने बुलाया कि ऐसे करना, तो उस दिन हमने 2 केस रखे, एक NDPS का केस, एक UAP का। मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे देता हूँ उसमें। तो जब वो उन्होंने 2 वकील बनाए थे अपने, जो एक PP था, एक अपना, और तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था एज ए जज, DGP बैठा था, एक और बैठा, 2 मदद से, वो जैसे आप लगाते हो मूड कोर्ट करते हो, तो एक पैनल। तो मैंने जब पूछना शुरू किया
जब वो केस था, मैं इधर सुनिए, मैंने कहा क्या भाई, कहते प्रायर इंफॉर्मेशन थी इसको पुलिस वालों को, तो हमें थे, तो हम क्या हुआ, हमने रिपोर्ट डाली, हम गश्त पे थे इधर नरवाल साइड पे, तो वहां पे गाड़ी आई, समझो 12 बजे आपके पास रिपोर्ट आ जाती है, 2 बजे आप इंटरप्रेट करते हो, उसको इंटरप्ट करते हो, इंटरसेप्ट करते हो, एक पुलिस वाला जाता है मोटरसाइकिल पे, आगे इंटरसेप्ट कहां करते हो, बीच में कर देते हो। भाई अगर आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा यार भाई हम नॉट ब्रांड था, फिर बाद में उसको बुलाते हैं एफएसएल वालों को, फिर बाद में किसको बुलाते हैं, मैजिस्ट्रेट को। 12 बजे आपके साथ 2 बजे के बाद जब मैंने कहा, तो जब वीडियो होगा ना फाइनल, जब हमारा तो वो उन्होंने भेजा, वो काट दिया था जो मैंने क्रॉस एग्जामिन किया, वो तो ऐसे करते ना क्रॉस रेटिंग। ये जो बात है वो प्रोसीजरल डिफरेंट। ये क्या करते हैं, सारा पकड़ कर के सामान लाते हैं घर उधर पुलिस स्टेशन में, पकड़ा किसी को, लाया, उधर कागज बनाते हैं। तो कागज जब बनने हैं, ये स्टूडेंट जो लिखेगा अपने हाथ से वो ही लिख सकता है, तो जो उसका कोई प्रॉक्सी करेगा, बात को समझेगा, तो ये वो करते हैं, सारा वहां पे सारा सामान लाके रख देते हैं। और इतना फिर इनको क्या ट्रायल कोर्ट में, यानी दिल्ली में हाई कोर्ट में भी ट्रायल कोर्ट में देंगे, दिखाने के लिए, तो देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कैसे होती है, पॉक्सो के जो विंडोज होता है उसका क्या था, उसमें क्या है, और इसमें लिखा हुआ है, कानून में भी है, जो आप पॉक्सो में भी लिखा है, जो उन्होंने कहा कि अक्यूज नहीं देख सकता बच्चे को, बच्चा देख सकता है, प्रोटेक्टेड विटनेस का उसका वो मिरर है, या आप कोई भी कर्टन बना लो, मैंने वहां पे बनवाया जो ट्रेनिंग विजयपुर में, तो वो जब डीजीपी को मैंने दिखाया ये चीज है, तो मैं ये कहता है ये क्या है, ये क्या, ये आधा वो ग्लास लगा था बीच में है इधर से, ये उसमें मैंडेटरी जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो चीजें हैं, ये देखो जब तक अदालत सबूत मांगती, मैडम आपके पास जब तक सबूत होगा सजा होगी, नहीं सबूत होगा फिर क्या करोगे। तो बच्चों और पूछो, कोई है, इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ पूछो, कोई क्वेश्चन इसमें, कोई एनी क्लैरिफिकेशन। मैं ये चाहता हूँ, पता क्या है, ये हम एक हमारा पैनल चलता है कश्मीर में भी, हम बच्चे, और इतनी जबरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं, वो जम्मू वालों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखो उसने मुझे पूछा एक क्वेश्चन, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में था, और मैटर नहीं था कि जिसमें कोई वो डिस्कशन में आया, मैंने कहा उसको कि ये चीजें हैं, कुछ चीजें एक्सप्लेन करें, तो आप पूछो कुछ सवाल। तो वो जो लॉ इंटर्न है ना, जो आपने पढ़ना है, ये किस लेवल पे है? मिक्स है, 3 इयर्स 5 इयर्स दोनों बोथ है, दोनों लास्ट में है, मतलब अभी इनको साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 महीने, नहीं इनिशियल सेमेस्टर 3 इयर्स फर्स्ट है, अच्छा 5 ईयर फिफ्थ है, थर्ड है। सभी चलो कुछ बात नहीं है। मैंने एक बार बताऊं, मैं इधर गया, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, जब हमने इंटरव्यू किया, बच्चे बड़े, आपके भी थे, ऐसा नहीं कि आपके बच्चे नहीं हो। देखिए जो यहाँ बोल सकता है ना, यहाँ पे बोल सकता है ना, चाहे वो मेरे जैसा बोले, कैसे मर्जी इधर उधर की बातें करे, वो आज देखो मोनोपोली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यू विल फाइंड लॉयर्स, और इतना पैसा है। बच्चों सुनो मेरी बात, मैं जो प्रैक्टिस करूं ना यहाँ पे, तो कहते हैं, लेकिन चलो अपना अपना है, तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, मतलब ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन। डॉक्टर शटर कुछ में नहीं है, जिसको पैसा बहुत है, अच्छा सर्जन जैसे पैसे देता है ना, सुनो मुझे कुछ नहीं है, एक बार बोलते हुए जाओगे, बोलोगे, क्लाइंट खुश हो जाएगा, यार मेरा बंदा बोला है। अगर नहीं बोलोगे, वहां क्या क्या है। मेरे एक बच्ची थी, तो कॉन्वेंट की, उसने जो पहले लेते हैं नर्सरी, जो वहां आई के फर्स्ट में था, तो मैंने कहा बच्चे क्या पूछा, अंकल मैं बोलती गई, तो वहां क्या है, बस वो देखना क्या है कि बोलता है मेरा लायर है, जज को नहीं बोलना, जज होगा थोड़ा वो भी बोलेगा, जैसे हमारे आपने देखा चीफ वहां पे बोलते हैं। तो अपना जो एनर्जी है, जो आपका है, तो ये आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, और सबसे बड़ा है इंटरेक्टिव सेशंस, बहुत जरूरी है। जैसे मूड कोर्ट, जैसे जी आपने, और जो अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को जी अच्छे प्रिंसिपल हैं,
और आप टीचर्स हैं ये बच्चों ये, और इनसे पूछो, आप पढ़ो और पूछो मेरे से क्वेश्चन, छोड़ो इसका एनडीपीएस को, ऐसे पूछो ला के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछो। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और नार्कोटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एक से नींद आती है, एक दिमाग को खराब करता है। मतलब जो प्रिंसिपल है जो नार्को का नार्कास, मैंने स्टार्ट में ही किया वर्ड नार्कास, ये लेटिन का है, इससे नींद आती है, मजेदार नींद आई। और मैं आंखें निकालने वाली बात नहीं बताई, जो एक ने निकाले स्विमिंग पूल में ना रहो, बस ये नशा है, मजा है। सो ओपी की कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा हाँ, बैठो, सभी की कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है, कोई भी कल्टीवेशन रेगुलेट होती है, हमारे एनसीबी करती है, जब और भी जो डिपार्टमेंट एक्साइज और ये हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके नीचे कोई भी कल्टीवेशन है जो कंट्राबैंड है एनडीपीएस में, चाहे वो पप्पी है चाहे गणवस है, ये इनको हिसाब लेना पड़ता है। और इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं इसमें, कितना बोया कितना काटा वो पूरा कंट्रोल है, जो ये निकल कितने फूल निकले कितने पत्ते निकले, जो स्टेम कितनी आई, आप इसके रूल्स पढ़ो, दूसरा पढ़ो इसका प्रोसीजर, ये सारा रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, इसमें वही चीजें हैं। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है। हमने देखो ना, ये मैंने पहले ही स्टार्ट में कहा, जो ने कहा भाई बंद कर दो आर्टिकल 41, हमें मेडिसिनल रिसर्च के लिए चाहिए। हमारी सारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कफ की आप कहते थे उसमें बच्चे वो पीते थे कोरक्स, जहां तक भी पॉलिश भी खा जाते हैं, जो पॉलिश है ना पॉलिश, उसमें भी कुछ है मजेदार। तो जनाब ऐसी बात, तो ये जो जब आप किसी चीज को एडिक्ट हो जाएंगे फिर उसका है रिहेबिलिटेशन, वो पुलिस भी बना रही है। और मैं ये पूछ रहे थे मुझे क्वेश्चन, अभी मुझे याद है कि सारे अच्छे घरों के लोग हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आपने सुना हो, ये पीछे रिया चक्रवर्ती, सुशांत, ये 3-4 उड़ता पंजाब हो गया। पंजाब में तो आपको फिल्म भी बन गई, फैशन फिल्म है, फोर्स है, ये रिया चक्रवर्ती है, सुशांत है, अभी आपने आर्यन का केस था, नहीं जाना कि क्या केस था क्या नहीं है। और रेप पार्टीज होती हैं, अभी आपको मजेदार सुनाऊंगा ना, ताकि ये बच्चे जाने थोड़ा सा लड़के मजेदार। रेप पार्टीज कहाँ होती है पता है आपको? गोवा में छोड़ के कहीं भी, इधर भी होती है, जम्मू में भी, मैं बता दूंगा आपको, फार्म हाउस जहाँ भी होती है, देखो बोला यार मुझे सारा पता है, लंबी बात है ना, एक बार 2 बार बुलाओ मुझे, मैं सारा चिट्ठा आपको दूंगा। तो ये रेप पार्टीज है। और जो हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री है ना, जो हमारा ये बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, पूरा वो उसमें। और इनका रेप पार्टी का रेट पता कितना है? और जो वहां नशा दिया जाता है आजकल हुक्का बार से, वो क्या है, मैरिजुना, जो उसी को थोड़ा सा किया है उन्होंने टेस्ट दिया, जैसे आपका वो भी है, तो क्या कहते हैं, ई सिगरेट क्या कहते हो जब आप चढ़ोगे ना उसमें, नहीं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है ना, जहर है, ये कहां से आ रही है, क्या है इसका? तो इसलिए जो हो रहा है समाज में, जैसे मैं अच्छा लगा कि पता होना, चाहे इन्वॉल्व हो ना हो कि क्या हो, तभी आप जो सचेत है, जो जानता है, बच सकते। नहीं तो आपका दोस्त कहेगा चलो यार वहां पे जाना है, उसको वहां पे पता नहीं कि वहां पे क्या होगा। जो जहां पे हमें लोग कहते थे वो पुलिस, यार पुलिस सारे चोर है, सारे चोरों के साथ, तो भाई चोरों के साथ ही उनको कहाँ है, मुखबिर कहाँ से लाएंगे? चोरी के बारे में कहाँ, मतलब तुझे क्या करना भाई, तुझे पता कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा आदमी को समझ सकते हो, ये बड़ा खतरनाक मामला है। एक बार जो इसमें चला जाता है फिर वो कैरियर बना देते हैं, फिर वो इतना दबाव आता है उस पर, सारी फैमिली खत्म कर देती है रिहेबिलिटेशन सेंटर। और अच्छी अच्छी फैमिली को मैं नाम नहीं किसी का बताऊंगा, जहां पे ऑफिसर है नौकरी छोड़ दी बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले गए, बैंगलोर में गए, 1-1 महीना 2-2 महीने। और हर एक बार आप जो हॉस्पिटल होगा प्राइवेट सरकारी, यू विल फाइंड इट रिहेबिलिटेशन। और एक सेक्शन 9A है, इंट्रोड्यूस किया, नेशनल फंड क्रिएट किया गया है जो इसको रिहेबिलिटेशन के लिए, और जो है आप पढ़ोगे इसको
मुझे बड़ी वो है, तो इसलिए ठीक लगा आप ही आ जाओ। वो को पूछना है पूछो। वो इम्यूनिटी देता है जब आप लेते हो ना, जो पर्सनल यूज कंजम्पशन भी पनिशेबल है। ऑर्डिनरी हाँ क्या करते हैं स्टेशन में होगा, चाहे घर में है बाहर है, वो पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड रिहेबिलिटेशन। जो आपका क्वेश्चन है कंजम्पशन, कोई पर्सनल कंजम्पशन जो है अपने तौर पे नहीं फॉलो करेगा कि जनाब जी मेरे पर्सनल कंजम्पशन। सर पर फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन भी तो बनवा सकते हैं। हाँ जी? फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन वो तो फिर देखो ना, जब बाहरी खेत को खाए, मैंने पहले ही कहा, जी जी उस पे आप यही तो ये लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं, जो आप लोग हैं अवेयरनेस करेंगे लोगों में। ये मैं तो पहले कहता हूं कि अगर आपने कुछ करना है तो सप्लाई डिमांड कम कर दो, तो ये कौन कर सकता है? एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, आप लोग हैं, कैंप्स होते हैं जो। तो अभी यहाँ पे आपने सुना है, जैसे रोज अखबारों में ये आपने उस पे चैनल पे देते, अटैक हो गया, ये ऑर्गेनाइज लोग हैं, पुलिस पे अटैक किया जहाँ पे। बिल्कुल जो ये लोग हैं, कहाँ बिकता है वहां पे अटैक किया पुलिस की पार्टी पे। ये आज ये रिपोर्टिंग जाएगी उनके पास, इधर भी एनडीएफएस पे बात कर रहे हैं। इसको मैंने कहा था कि इस पे चर्चा होगी बाहर लोगों को, क्योंकि ये लोग हैं वेल निटेड है, हर जगह पे उनके पूरे हुए हैं। इनके जो मुखबर है, मैंने एक दिन कहा कि भाई मुखबर जो पुलिस पैसे देती है मुखबर बनाने की, वही देती है। यही लोग, एक दिन उसने कहा यार जनाब जो विसल ब्लोअर है, मैंने एक बार किया तो उसने कहा जनाब जो ये चीजें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उधर लिखा, पुलिस स्टेशन का नाम लिखा है, तो इंफॉर्मेशन देने वाले को तो इंफॉर्मेशन जो आरटीआई एक्ट पढ़ोगे ना, चाहे वो भी मैं इस पे आ जाता हूँ, जो इंफॉर्मेशन देगा वो वल्नरेबल, वो हो सकता है उसको शाम को उठाए, जो जहां उसको क्या कहें, जो उनका जो उनका कैरियर है, जहाँ जो उसको कहे भाई क्या करो, भाग जाओ, ये इंफॉर्मेशन आ गई। थैंक यू वेरी मच।